We are reading from first canto, ninth chapter, verse number 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 1930। तदोपसहनृत्य गिरः सहस्रणीर विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलित द्रव्य धारयात्। Thereupon that man who spoke on different subjects with thousands of meanings, and who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men, stopped speaking and, being completely freed from all bondage, withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the original personality of Godhead Sri Krishna, who stood before him, four-handed, dressed in yellow garments that glittered and shine. So before we read the purport, let's do a quick recap of what has happened so far, है ना? So जो भीष्मदेव जो हैं, भीष्मदेव is a pure devotee of the Lord, है ना? भीष्मदेव is a pure devotee of the Lord. Now, if you think about it, he is, यहाँ पर जो ये वर्ड है ना सहस्त्रणी, ये जो वर्ड दिख रहा है सहस्त्रणी, सहस्त्रणी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स हो, है ना? अब तदोपसंहृत्य, है ना? तदोपसंहृत्य मतलब क्या हो रहा है? उन्होंने इतनी सारी इनकी क्वालिटीज हैं, इन्होंने सारी उससे निकाल के अपना जो मन है सबसे खींच लिया। विमुक्त संगम मन आदि पुरुष है। विमुक्त संगम मतलब उन्होंने सारी चीजों से अपने आप को लपेट लिया और कहाँ पर लगाया उसको? विमुक्त संगम किस पे लगाया मन अपना? आदि पुरुष है। हु इज आदि पुरुष? गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। कौन है आदि पुरुष? गोविंदा, है ना? विमुक्त संगम मन आदि पुरुष है। और कौन से हैं? कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे, है ना? कृष्ण तो हमें पता है चतुर्भुजे। अब यार, कृष्ण भगवान तो सिर्फ दो 200 फॉर्म है, लेकिन अपने भीष्म देव को चार भुज वाले दिख रहे थे। एवरीबडी एल्स कैन ओनली सी 200 फॉर्म ऑफ कृष्णा, बट क्योंकि भीष्म देव was attached to the 400 form of Vishnu, he could only see that 400 form with the yellow garments, है ना? और उसके बाद क्या है? और लसत पीठ, है ना? लसत पीठ, है ना? लसत पीठ मतलब डेकोरेटेड विद येलो गारमेंट एंड चतुर्भुज, चार भुजा वाले, पूरे स्थिति मिलंग द्रग वयोधरा, वाइड स्प्रेड। द्रक का मतलब होता है देख, जो उनका दिखा मतलब विजन होता है, विजन कहते हैं द्रक। उनका द्रक को उसने अपने विजन को किस पे लगा दिया? भगवान के 400 फॉर्म पे, है ना? दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। एनीबडी वांट्स टू रीड द परपोर्ट? I Yes, can. Prabhu, I can read. ओके Yes. माता जी, आप Prabhu, Yes. you are नो going नो to नो read. माता जी, आप Okay, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्ण। In the momentous hour in the momentous hour of leaving his material body, Bhishma set the glorious example concerning the important function of the human form of life. The subject matter which attract the dying man becomes the beginning of his next life. Therefore, if one is absorbed in the thoughts of Supreme Lord Shri Krishna, he is sure to go back to Godhead without any doubt. This is confirmed in Bhagavad Gita 8.5:15. 5. And whoever at the time of death
quits his body, remembering me alone at once attained my nature. Of this हाँ, there is दिस इज no द doubt. वर्स नंबर 5 है ना, वो अंत काले च मामेवा, वो वाला Okay, वर्स। okay, Prabhu. हाँ, Yeah. कीप गोइंग। नंबर 6। Verse number 6. Whatever state of being one remember when he quits his body, that state he will attain without fail. Verse number 7. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. 8. He who meditated on the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path. He, O Partha, is sure to reach me. 9. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is the smallest than the smallest, is smaller than the smallest, who is maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is a luminous like the sun, and being transcendental is beyond his material nature. One who at the time of death fixed his life here between the eyebrows and in full devotion engaged himself in remembering the Supreme Lord will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. 11. Person learned in the Vedas who utter Omkara and who are great sages in the renounced order enter into the Brahman. Desiring such perfection, one perfect celibacy. I shall now explain to you this process by which one may attain salvation. 12. The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in the yoga. After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. 14. For one who remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pratham, because of his constant engagement in devotional service. 15. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries because they have attained the highest perfection. Shri Bhishmadev attained the perfection of quitting his body at will and was fortunate enough to have Lord Krishna, the object of his attention, personally present at the time of death. He therefore fixed his open eyes upon him. He wanted to see Sri Krishna for a long time out of his spontaneous love for him. Because he was a pure devotee, he had very little to do with the detailed performance of yogic principles. Simple bhakti yoga is enough to bring about perfection. Therefore, the ardent desire of Bhishmdeva was to see the person of Lord Krishna, the most lovable object, and by the grace of the Lord, Shri Bhishmdev had this opportunity at the last stage of his breathing. Hare Krishna. Prabhu. हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। व्हाट ए ब्यूटीफुल purport. It's like it looks like we are actually looking at reading chapter number 11। सॉरी, चैप्टर नंबर कौन सा है भगवत गीता? 8th चैप्टर है ना। 8th चैप्टर के 5 to 15, 10 वर्सेस का शिल प्रभुपाद ने इसमें वो दिया है। सो जो 10 वर्सेस हैं वो हमने देख लिया है। इट इज प्योरली वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम लोगों को पता है कि अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। अंत काल में हम जिस जिस पर्सन के बारे में सोचते हैं, वी विल अटेन दैट पर्सन, वी नो दैट, है ना। और इसीलिए हमारा जो भक्ति है वो यही कर रहे हैं हम लोग। पूरे भक्ति में हम लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग वेयर एट द टाइम ऑफ डेथ वी विल रिमेम्बर कृष्णा, है ना। तो देयर इज ए स्टोरी, स्मॉल स्टोरी, जो ऐसे ही थी कि देयर वाज दिस गाय, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो उसने मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक ने आके गाड़ी देखी और उसने ना थोड़े बहुत इंजन खोल के इधर उधर देखा, कुछ टेस्टिंग करी। फिर एक जगह पे हथौड़ा मारा, एक हल्का सा, वो वुडन हथौड़ा होता है ना, हल्का सा मारा एक दो बार, और उसने गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो उसने बोला कि हाउ मच? तो उसने बोला कि $500। तो उसने बोला $500, दो बार हथौड़ा मारने के $500, दैट्स रियली एक्सपेंसिव।
तो उसने बोला हथौड़ा मारने के तो आई ओनली चार्ज यू $10। हथौड़ा मारने का तो $10 ही है, लेकिन वो हथौड़ा कहाँ मारना है, आई चार्ज यू $490, बिकॉज आई हैव स्टडीड दिस, हथौड़ा कहाँ मारना है फॉर सो मेनी ईयर्स, है ना, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम चार्जिंग यू फॉर दैट। सिमिलरली हमें क्या लगता है, हमें पता है अंत काले च मामेवा, अंत में अगर हम भगवान को याद करेंगे, वी स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, हमें मुक्ति मिलना गारंटीड है। लेकिन हमें क्या लगता है कि यार अंत में ही ले लेंगे नाम, लेकिन बात तो वही हो गई, हथौड़ा मारना आपको आता है, लेकिन वो कहाँ मारना है उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। तो वो जो प्रैक्टिस है, वो चैंटिंग, हमारी जो भक्ति है, ये प्रैक्टिस पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस किस लिए है, सो दैट एट द टाइम ऑफ डेथ वी कैन रिमेम्बर द लॉर्ड। दिस इज द होल आइडिया अबाउट गेटिंग इनटू भक्ति, डूइंग चैंटिंग, है ना, फॉलोइंग फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, उसका मीनिंग यही है। Now, let's come to Bhishma Dev. Bhishma Dev is such an amazing personality. Like, I don't think, देखो हमारे जो महाभारत हम लोगों ने टीवी में देखा था, they haven't showed us what exactly Bhishma Dev was. Bhishma Dev बहुत पावरफुल आदमी थे। कितने पावरफुल थे? I'll give you an example. He was so powerful कि पूरी कौरव आर्मी, 11 अक्षौणी सेना, पूरी की पूरी कौरव की आर्मी, 11 अक्षौणी सेना, पूरी की पूरी पांडवों की आर्मी, 7 अक्षौणी सेना, मतलब 18 अक्षौणी सेना को भीष्म देव अकेले हरा सकते थे। आई रिपीट, 18 अक्षौणी सेना को भीष्म देव अकेले हरा सकते थे। दिस वॉज द कैलिबर ऑफ भीष्म देव, है ना। भीष्म देव ने, कई बार लोग कहते हैं व्हाई डिड भीष्म देव कौरवों का साथ क्यों दिया, बिकॉज भगवान ने भीष्म देव को यूज करा कि पर्सन लाइक भीष्म देव, जो 18 अक्षौणी सेना को अकेले हरा सकता है, वो भी अगर अधर्म का साथ देगा तो भी नहीं जीत सकता। हुएवर, है ना, भले ही वो भीष्म देव कोई ना हो, इसलिए भीष्म देव को यूज किया भगवान ने हम लोगों को लर्निंग देने के लिए। बट दैट डज नॉट रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ भीष्म देव। ही वॉज अ प्योर डिवोटी। एक और एग्जाम्पल आता है महाभारत में, जब यज्ञ हो रहा था, तो राजसूय यज्ञ जब हो रहा था, तो कृष्णा को जब बनाया था कि यू आर द हेड ऑफ द यज्ञ, तो आपको वो पदवी मिलनी चाहिए, है ना, यज्ञपति। तो कौन था जिसने वो करा था, मना करा था, किसी को पता है? एनीबडी नोज हु सेड नो टू दिस? somebody said no, Krishna cannot be the head of यज्ञ एट राजसूय यज्ञ, जब युधिष्ठिर महाराज करवा रहे थे। एनीबडी रिमेम्बर हु इंटरवीन्ड, हु सेड नो, दिस इज नॉट राइट? maybe Shishupal. शिशुपाल, एग्जैक्टली राइट, शिशुपाल सेड नो, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, अभी आप सोचो, नाउ लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट। जब ये समय हो रहा था, इससे पहले, इससे काफी टाइम पहले क्या हुआ था कि भीम को कौरवों ने जहर दे दिया था, एंड उनको नदी में फेंक दिया था। नदी में उनको सांपों ने डस लिया था, सांप से वो जहर वो कंप्लीट हो गया। फिर वो नाग देवता ने उनको अपना सोमरस पिलाया। वो जो सेलेस्टियल पानी उन्होंने पिया, जो जूस उन्होंने पिया, उससे उनको 80,000, कितना, 80,000 हाथियों का बल आया उनपे, है ना। कई बार लोग कहते हैं 10,000 हाथी, 20,000 हाथी, 80,000 हाथियों का बल था। जब वेन भीम कम आउट ऑफ उस नदी से जब बाहर निकला भीम, ही हैड 80,000। इमेजिन एक हाथी में कितनी ताकत होती है, 80,000 हाथियों की ताकत थी भीम में। ठीक है, अब राजसी युग में जब ये था, क्या बोलते हैं, शिशुपाल ने गालियां देनी शुरू करी कृष्ण भगवान को, तो सारे के सारे पांडव वहां थे एंड दे वर रियली एंग्री। और भीम गेट्स रियली एंग्री रियली क्विकली, तो भीम तो उठ के मारने जा रहा था उसको बीच में ही। और उसको किसने, उसमें कितनी शक्ति थी उस वक्त, 80,000 हाथियों की शक्ति थी। और भीष्म उनके पास में बैठे थे भीम के। तो भीष्म ने एक हाथ उनके कंधे पर रख दिया था भीम के, एक हाथ की 4 उंगलियों से उन्होंने 80,000 हाथियों का जिसमें बल था उसको उठने नहीं दिया चेयर से। भीम अपनी पूरी जुगत लगा के सीट से उठ नहीं पाया, बिकॉज भीष्म ने उनके कंधे पे 4 उंगलियां रख दी थी। दिस वॉज भीष्म।
Bhishma was one of the most powerful warrior ever existed in the history. This is the power. Now, this Bhishma Dev, है ना, this भीष्म देव, कृष्णा कृष्णा ने क्या करा, भीष्म देव की जो मृत्यु थी उसको एक पूरे चैप्टर में डाल दिया। कैन यू इमेजिन, व्यासदेव जी ने एक चैप्टर दिया है भीष्म देव ने अपनी देह कैसे त्यागी। Why? Because the learnings, the sheer learnings we can take from Bhishma Dev is so immense, जिसकी हद नहीं। Because Krishna is called Achyuta. Achyuta मतलब who will never fail his devotee, है ना। Now Bhishma Dev is one of his amazing devotee. मम्मी एक भजन सुनाती थी हम लोगों को। द भजन वाज, अपना मान जाए तो जाए, भक्त का मान ना गिरते देखा, प्रभु प्रभु को नियम बदलते देखा, है ना। क्या बोला कि भगवान ने अपने नियम बदल दिए बट अपने भक्त को कभी गिरने नहीं दिया। नाउ भीष्म देव ने कृष्ण ने कसम खाई थी कि आई विल नॉट लिफ्ट द वेपन, है ना। जब भीष्म को पता चला, भीष्म ने अर्जुन को इतना घायल कर दिया दैट कृष्णा को लगा ही इज गोना डाई। कृष्णा जम्प्ड आउट, चैरिट व्हील उठा लिया एंड ही ran towards Bhishmadev, and Bhishmadev was so happy looking at him, his वीर रस में ना, because that's what he wanted to see him. अब ये जो नियम था ये भगवान ने खुद ने बदल दिया, मतलब अपने खुद के वादे से भगवान मुकर जाते हैं, मुकर गए। he did not care. This is how detached he is. हम लोग, हम वी वर टॉकिंग अबाउट हमारी इमेज, हमारी प्रेस्टीज, है ना। अभी हमारे साथ, मेरे साथ क्या है, 2 कौड़ी की प्रेस्टीज नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कहीं मेरी प्रेस्टीज में और ना दाग नहीं लग जाए। है नहीं प्रेस्टीज, फिर भी दाग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब कृष्णा क्या है, कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ही डिड नॉट केयर कि कोई मुझे, वो रण छोड़ के भाग गए, उनका नाम पड़ गया रणछोड़ दास, रणछोड़, है ना, रणछोड़ भगवान। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कृष्णा इज आत्माराम, ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, ही डज नॉट केयर, एंड दैट इज द क्वालिटी दैट वी नीड टू इम्बाइब फ्रॉम कृष्णा। कि हमारे पास कितनी भी क्वालिटीज हो, वी शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम कि आज है कल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी, है ना। तो आ, आप सोचो, भीष्म देव के कारण अर्जुन ने, सॉरी, भीष्म देव के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना अपना खुद का की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी, है ना। दिस इज हाउ मर्सीफुल ही इज। कोई कई लोग बोलते हैं उन्होंने ना, उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए करा। अरे अर्जुन ही नित्य सिद्ध भक्त हैं, उनको कोई वैसे भी कुछ नहीं कर सकता है। और भीष्म विल नेवर किल अर्जुन, ठीक है, वो भी पता था उनको। ही पिक्ड अप दैट वेपन बिकॉज ही वांटेड भीष्माज, भीष्म ने जो प्रण लिया था उसको सच करने के लिए ही ब्रोक हिज प्रॉमिस। To keep the promise of Bhishma Dev, he broke his promise. This is how merciful he is towards his devotee. I mean, it's not ordinary. Like if you think about it, that is not an ordinary thing. Nobody, हम लोग आजकल अपने भाइयों के लिए ऐसा नहीं कर सकते। He can do it. अब इसीलिए भगवत गीता में there is a verse, कौन्ते प्रति जाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन go and declare that my devotee will never perish. Go and declare. अब हमारे आचार्य बोलते हैं यार, उन्होंने अर्जुन को क्यों बोला डिक्लेयर करने के लिए ऐसे, क्योंकि अब इस महाभारत के बाद कौन विश्वास करेगा कृष्ण पे। अरे यार ये आज बोल रहे हैं कल मुकर जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है इनका, ऊपर हथियार नहीं उठाने के लिए मना करा था, उठा लिया। लेकिन वो बताना चाह रहे थे कि इफ माई डिवोटी सेज समथिंग, क्योंकि जब व्हेन अर्जुन सेज समथिंग बिकॉज ही इज अ डिवोटी, देन नो मैटर व्हाट हैपेंस, कृष्णा विल नेवर गो बैक फ्रॉम हिज वर्ड। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही आस्क्ड अर्जुन to go and declare that Krishna's devotee will never vanquish. That is the potency of Krishna. Now, अभी तक हम लोगों ने जो देखा, इसमें हमारा जो ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं भीष्म देव से, वी हैव हैड सो मेनी टीचिंग्स फ्रॉम भीष्म देव, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, भीष्म देव ने हम लोगों को सिखाया हाउ टू मेक श्योर वी मीट एंड रेस्पेक्ट गेस्ट। जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हमारी जिंदगी में जो लोग आते हैं, दे आर ऑल गेस्ट। हाउ डू वी ट्रीट देम। कई लोग बोलते हैं ओ आई वुड हैव ट्रीटेड देम वेल, अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास वो होता। नो, भीष्मदेव के पास क्या था, ही वॉज ऑन ए डेथ बेड,
on a bed of arrows, bleeding. He was still, what उन्होंने क्या करा ड्यूरिंग दीज डेज, जब वो युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे थे, he made every single person 100% comfortable. किसी पे उंगली नहीं उठा रहे थे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और हमारी क्या आदत है, वी लुक एट फॉल्ट्स ऑन एवरीवन, हर किसी को। 90% पीपल, हम नॉट 90, अशुभ 90% ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में मतलब मैं करता हूँ, आई मेड एटलीस्ट 50% पीपल अनकंफर्टेबल अराउंड मी, है ना। आस्क माई वाइफ, शी विल टेल यू, ठीक है। She probably is much more uncomfortable, but what I'm saying is I don't have that. So this is what we can learn from Bhishma Dev. I think, oh, I would have treated you well only if I had better mindset. Bhishma Dev was on a bed of arrow. He was about to die. What other उससे ज्यादा क्या ट्रॉमेटाइज कुछ हो सकता है हमारी लाइफ में कि वी कांट ट्रीट पीपल नाइसली, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द टीचिंग्स दैट ही इज गिविंग, है ना। सेकंड इज दैट ही वाज सच ए कॉम्पिटेंट डिवोटी। कैसा कॉम्पिटेंसी का लेवल देखो उनका। भीष्म देव पावरफुल तो मैंने बता दिया था, ही वाज सो पावरफुल दैट 4 उंगलियों से उन्होंने भीम को रोक लिया। दूसरी कॉम्पिटेंसी देखो, ही इज क्वालिफाइड टू टीच हु, धर्मराज। मतलब आप सोचो, धर्मराज कैन गेट कंफ्यूज्ड अबाउट धर्म, बट भीष्म देव कैन नॉट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट धर्म, है ना। नाउ some people will question, oh that's not right, because भीष्म देव was sitting in that वो जो था ना, क्या बोलते हैं, जहां पर द्रौपदी चीरहरण हुआ था, उस सभा में बैठे थे। ही डिड नॉट से एनीथिंग। दैट वाज लीला, दैट वाज अ लीला, दैट वाज द इंस्ट्रक्शन, दैट वाज द दैट वाज अ कृष्णा's थिंग कि भाई डोंट से एनीथिंग भीष्मा, डोंट से एनीथिंग, because I want you to be on the side of wrong so that I can teach people, even if someone like Bhishma जो अधर्म का साथ देगा, even he will be defeated. And Bhishma was very happy to be part to participate, and that's why this is the quality of bhakta. उनको ना अपनी insult कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता। If God is using them, God is insulting them to teach other people a lesson, he they are happy. Said भगवान, oh आपने मुझे चूज करा लोगों को लेसन देने के लिए, please do it, please keep doing it, I have no problem, do it. This is how devotees are. ठीक है। जो दूसरी टीचिंग क्या थी, टीचिंग तो नहीं मतलब कॉम्पिटेंसी देखो, भीष्म देव की कॉम्पिटेंसी, ही कैन टीच धर्मराज, ठीक है। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा, उन्होंने मोक्ष के बारे में बात करी, स्त्री धर्म क्या होता है, राज धर्म क्या होता है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए किंग। मितुल प्रभु ने बड़ी अच्छी क्लास दी थी उस पे ना, ड्यूटी, किंग की ड्यूटी क्या होती है, ठीक है। वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्णाश्रम धर्म, है ना, वर्णाश्रम धर्म कैसे करना चाहिए, क्या होता है ना। उसके बाद नाउ इस जस्ट पहले ही वाज टॉकिंग अबाउट कृष्णास ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, कि हु इज एक्चुअली कृष्णा एंड व्हाट इज ही ऑल अबाउट, है ना। एंड देन अदर थिंग दैट ही टॉट इज हाउ शुड वी बिहेव when we are going through suffering and anxiety. एंजाइटी तो खैर इनको थी नहीं, बिकॉज ही वॉज ए भक्त डिवोटी, डिवोटी नेवर गेट स्केर्ड, है ना। तो बट ही वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ सफरिंग, हाउ शुड वी बिहेव। भीष्मदेव हैज एग्जेम्प्लीफाइड पांडवास, ठीक है। ही वाज लाइक दीज आर द पांडवास, इनको साथ इतनी सारी चीजें हुई हैं, बट दे नेवर, उन्होंने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया, कितना भी हो गया उनके साथ, नेवर, है ना। then nothing belong to us, he's teaching us nothing belongs to us, we only have, आपको पता है कई बार हम लोग कहते हैं ना कि oh we should do this because krishna wants this, krishna wants this। हमारे पास can I just, this is just an open forum, I'm going to ask you a question, what is it that, what is it that we can give krishna, हम लोग क्या दे सकते हैं कृष्णा को, what is it and what should we give krishna। Prabhuji, of time, Time, yes, very good. What else we can give krishna? love, Love, yes, we can definitely. What else? and even serve devotees around us. Yes, yeah, that we can do. Yes. What else? This is Devotion, yeah. Richa Mataji said devotion. What else?
What else can we give Krishna? Seva. Yes, we can give seva. What else? To our heart, like Our heart. Yes, yes, our heart. So next question is, out of all of these things, what is the thing that belongs to us that we can give? What is it that belongs to us? Free will. Yes, very good. Our free will, our thinking, our willing, and our feeling. These are the three things that belongs to us. ना तो पैसा, एंडेवर, यस, पूजा पूजा माता जी सेड एंडेवर. हमारा जो एंडेवर है, एंडेवर कम्स फ्रॉम व्हाट? एंडेवर कम्स फ्रॉम आवर फ्री विल. अभी एंडेवर्स करने के लिए जो हमारे पास हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, वो भी भगवान के हैं. मैं बोल रहा हूं अभी, मेरे को मुंह, जबान, वोकल कॉर्ड, मेरा इसोफेगस, जहां से भी मेरा जो पूरा का पूरा जो साउंड सिस्टम है, मेरे गले का साउंड सिस्टम और इस लैपटॉप का साउंड सिस्टम, और आप लोग जिस चीज से सुन रहे हो वो वाला साउंड सिस्टम, एवरीथिंग इज अल्टीमेटली कमिंग फ्रॉम कृष्णा. हमारा तो कुछ है ही नहीं. द ओनली थिंग वी कैन गिव कृष्णा is our free will. Like हमारे what are we thinking about Krishna? What are we thinking? What are we feeling? And what are we doing about it? है ना? Doing भी नहीं कह सकते. Actually thinking, willing and feeling. ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन चीजें we can give Krishna. Krishna has everything except for our attraction towards him. जो हमारा उनके लिए थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है, वही भगवान के पास मिसिंग है. He has everything. He doesn't need anything from us. है ना? तो ये जो, और कई बार हमें लगता है कि यार why are we discussing this as well, like this is इतिहास है ना. जो महाभारत है ना, महाभारत जो आता है वो इतिहास पोर्शन में, इतिहास पोर्शन का है. ठीक है ना. इतिहास क्या होता है? इतिहास, इतिहास का मतलब होता है इति, हा और आस. है ना. इति का मतलब होता है इट, हा का मतलब होता है डेफिनेटली, आस का आस, असा, असा, असा जो होता है ना, असा, इसका मतलब होता है हैपेंड. इट डेफिनेटली हैपेंड, दैट इज कॉल्ड इतिहास. है ना. मॉडर्न हिस्टोरियंस क्या करते हैं? फैक्चुअल अकाउंट्स ऑफ व्हाट इवेंट्स हैव हैपेंड अबाउट सक्सेसफुल पीपल हु आर डेड. दिस इज मॉडर्न हिस्टोरियंस. ठीक है. लेकिन जो हमारा इतिहास बता रहा है, इट इज ट्राइंग टू टीच अस. अब मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री और इवन एंशियंट हिस्ट्री भी व्हेन वी रीड, हम लोगों को क्या मिलता है? एक ही, मैक्सिमम एक लर्निंग हमें मिलती है, माइट इज राइट. जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज राइट, इस तरह की नॉलेज, इस तरह की लर्निंग हमें मिलती है. लेकिन व्हेन वी रीड द इतिहास विच इज पार्ट ऑफ आवर वेदास, दिस इतिहास, बिकॉज इट्स कॉल्ड इट रियली हैपेंड, ये क्या देता है हमें? हमें देता है हम वैल्यूज. It teaches us values. It does not teach us a lesson like might is right and things like that. ठीक है. अब ये जो श्लोक है, ये जो हम लोग अभी आज जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, I'm gonna share again this thing, this quickly. ये जो यहाँ पर जो लिखा है इन्होंने, 1000 सहस्त्राणी, है ना. ये जो सहस्त्राणी, सहस्त्राणी का मतलब होता है कि, अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे तो वन, सहस्त्र का मतलब होता है thousands of, he was expert in thousands of science and arts. This is another thing. भीष्म देव was हजारों, उनके पास ऐसी क्वालिटीज थी जो ऑर्डिनरीली लोगों के पास नहीं हो सकती हैं, हो ही नहीं सकती हैं. ठीक है. अब क्या है, जैसे वो क्या है, ठीक है, मॉडर्न पीपल क्या करते हैं, हम लोगों को क्या चाहिए? नेम, फेम, पैसा. दीज आर द थ्री मेन थिंग. नाम, है ना, नाम, शोहरत और पैसा. है ना. ये तीन चीजें, प्रेस्टीज, हम लोग हमारी इज्जत करें, हमारे पास पैसा हो, है ना, और I should be known for some of my qualities that I have. Everybody wants that, but they are not willing to pay the price. सबको चाहिए ये चीज, सबको चाहिए. लेकिन बहुत कम लोग सक्सेसफुल इसलिए हो पाते हैं, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज रेडी टू पे द प्राइस. नॉट एवरीबडी. अगर आपको पता है, आई डोंट नो, आप लोगों में से कोई फॉर्मूला वन कार रेसिंग फॉलो करता है? डू यू नो हाउ इट वर्क्स? ओके. तो फॉर्मूला वन कार रेस में क्या होता है?
एक ड्रैग ड्रैग करके होता है, ड्रैग। कार के पीछे ना एक ऐसा फ्लैप लगा होता है, कार के पीछे हल्का सा एक फ्लैप लगा होता है जो विंड रेजिस्ट करता है, ठीक है। एक चीज कहते हैं जिसको ड्रैग इफेक्ट कहते हैं। फॉर सर्टन फ्यू सेकेंड्स के लिए यू कैन चेंज दैट पैनल, ऐसी की जगह ऐसे हो जाता है वो, तो एयर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो कार कैन रन फास्टर। जो सीधे सीधे ट्रैक्स होते हैं वहां पर दे कैन डू ड्रैग, बट देयर आर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस, ठीक है। वो उतने समय पे यू कैन एक्चुअली गो फास्टर, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज द पे ऑफ दैट दे हैव, फॉर्मूला वन ड्राइवर्स दे हैव, उनके पास ऑप्शन होता है। उनके दे कैन ओनली चेंज डिफरेंट चीजों में डिफरेंट होता है। दे कैन चेंज देयर टायर्स वंस और ट्वाइस। दे कैन हैव द टायर विच इज हार्ड, और दे कैन हैव द टायर विच इज सॉफ्ट। हार्ड टायर होते हैं वो क्या करेंगे, आप जब टर्न ले रहे होते हो तो वो स्किड कर जाते हैं, तो यू हैव टू टर्न स्लोली, ठीक है। ये एक क्वालिटी है हार्ड टायर में। और सॉफ्ट टायर क्या करते हैं, व्हेन यू टर्न इट विल स्टिक टू द ग्राउंड, है ना। यू कैन टर्न रियली फास्ट, इट वोंट स्किड, है ना। प्रॉब्लम सॉफ्ट टायर्स में क्या होती है, सॉफ्ट टायर बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। यू हैव टू विद इन प्रॉब्ली 10 लैप्स आपके पूरे टायर खत्म हो जाएंगे, मतलब घिस जाएंगे बिल्कुल। एंड देन यू हैव टू चेंज द टायर, तो आपको पिट में वापस जाना पड़ेगा, पिट में आपको टाइम बिताना पड़ेगा, बाकी सारे लोग ऑलरेडी जा रहे हैं, सो यू विल वेस्ट योर टाइम। सो यू नीड टू नो व्हाट इज योर पे ऑफ। अगर आपको सॉफ्ट टायर लगाने हैं तो यू नीड टू नो व्हाट आर यू पेइंग ऑफ व्हेन यू गेट अ सॉफ्ट टायर। इफ यू गेटिंग अ हार्ड टायर यू नीड टू नो कि आप क्या लगा रहे हो उसमें। सिमिलरली हमारी लाइफ में वी वांट ऑल दीज एक्colades, मेरे को आई वांट टू बी नंबर वन, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दिस, बट व्हाट एम आई विलिंग टू पे, व्हाट एम आई विलिंग टू पे। Problem is lot of people, they are not willing to pay anything. They are ready to, they're absolutely ready to get anything, but they don't want to pay anything. They don't want to pay. So if you think about it, uh, कि to gain competency, this is from my notes, है ना, to gain competency we needed, अगर हम लोगों को we need to inculcate values, जैसे इनके पास भगवान भीष्म देव के पास वैल्यूज थी, कैरेक्टर। आप सोचो हमारे पास व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन, है ना। वी नीड टू वर्क ऑन हायर कैलिबर, we need to be more valuable. This is one of the things that I can't remember who said it, but I remember this quote. It says, we need to ask, all of us, we need to ask what value I can add into myself in order for me to add value to others. I'll repeat. What is the value that I can add into myself so that I can be more valuable for others? Now, modern scenario mein, it's opposite. What is it that I can do to just get more value from people? I don't care whether I am valuable to them or not, है ना। कितना, जैसे इंडिया में इफ यू कैन कंपेयर, रिलायंस कंपनी है एक, और एक टाटा कंपनी है, दोनों का जो वैल्यू सिस्टम है कंप्लीटली डिफरेंट है। रिलायंस कंपनी है कट थ्रोट, सामने कॉम्पिटिटर आ रहा है, दाम इतना नीचे कर दो कि कॉम्पिटिटर अपना बैंक्रप्सी हो जाए, वो निकल जाए मार्केट से, देन वी कैन, फिर हम लोग अपने प्राइस बढ़ा देंगे, वी कैन रन। टाटा कंप्लीटली डिफरेंट, दे वांट ह्यूमिलिटी, दे वांट टू डू फेयर, कि नहीं हम वी विल रियली ग्रो, बट वी विल नॉट स्टॉप अदर पीपल्स ग्रोथ, ठीक है। अभी क्या हुआ, देयर वाज अ टाइम, आई डोंट नो वेदर यू नो, देयर इज अ साइमन सिनेक करके एक बंदा है, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, इज अ लीडरशिप गिग, बहुत ही इज अ अमेजिंग गाय, ही रोट अ बुक, व्हाट इज इट, द व्हाई, यू नीड टू, व्हाई के ऊपर उसने बुक लिखी थी ना, फाइंड योर व्हाई। नाउ he went to Microsoft to do a seminar on leadership, and he went to Apple, ठीक है। एप्पल में करा, एप्पल वाले, देयर वाज दिस वेरी सीनियर गाय हु ड्रॉप्ड हिम टू द एयरपोर्ट, फिर देन ही आफ्टर दैट ही फ्लू टू न्यूयॉर्क एंड ही वेंट टू Microsoft, and he gave a talk on in Microsoft. When he was leaving, the Microsoft guy gave him uh, uh, a notepad, a pad, like not iPad, but what do you call that? Just a, what do you call other, Android का कुछ दे दिया ना, it was टैबलेट। tablet, हाँ एक tablet उसको दिया, ठीक है। And
थ्रू आउट द होल टाइम, फ्रॉम जब वो कार में बैठा उस बंदे के साथ, जब उसको गिफ्ट कर रहा था, वहां से लेके एयरपोर्ट तक, द गाय वाज ओनली टेलिंग हिम, शोइंग द फीचर्स ऑफ दैट टैबलेट एंड शोइंग, लुक, ये ऐसा है, एप्पल के साथ ऐसा है, ये ऐसा है, ये एप्पल के साथ, एप्पल से व्हाई इज इट बेटर देन एप्पल। ही वाज द होल टाइम, द होल कंपनी वाज कंपेयरिंग देमसेल्फ टू एप्पल, एंड ऑल हिज टाइम व्हेन ही स्पेंट इन एप्पल, they did not speak about Microsoft even one bit. They only spoke about what is it they're doing to make customers' life easy. They were not competing against Microsoft. They were competing, they were actually just focused on how can I add value. And this is the thing. Imagine these things, हमारे शास्त्रों में भीष्म देव is teaching us. Bhishma Dev is teaching us, we all need to. He has thousands of arts and crafts, and he had all these qualities that इसके इतनी सारे talent. He had thousands of talents, है ना? What are the talents we have, and how can we increase those values so that we can add more value, है ना? For example, नाम संकीर्तन प्रभु इधर हैं क्या? हाँ हैं। जैसे नाम संकीर्तन प्रभु है, नाम संकीर्तन प्रभु की अभी मैंने क्लासेस सुनी, जो उनकी भक्ति वर्षा की क्लासेस चल रही हैं, एंड आई एम एन एब्सोल्यूट फैन ऑफ नाम संकीर्तन प्रभु। नाम संकीर्तन प्रभु में एक नेचुरल टैलेंट है क्लासेस देने का, एंड आई एम टेलिंग यू, ही दिस टैलेंट, नाम संकीर्तन प्रभु नीड टू expand his talent. He need to work on his talent because he can influence people in a way that I have not seen other people, like I've seen but not many people, जो क्योंकि इन्होंने तो अभी शुरू करा है क्लासेस देना। He can grow like anything. He has that kind of a thing, like भगवान ने उनको talent दिया है, he should now focus on how he can make his Naam Sangeeta Prabhu, this is not a instruction for you. This is just a suggestion. When I was reading about it, I thought, you have this talent, and if you work on this talent, you can add lot of value on yourself so that you can increase the value that you're giving people. And अभी तो आपका exposure, now Naam Sangeeta Prabhu is giving classes in Mandir, temple maybe he started giving classes in the temple. And he has been rostered in temple, permanent roster में चले गए, and he's rostered in अपने Wyndham Center के भी roster में आ गए. And the reason is because he is that kind of a person who can influence people with his talk, with his simplicity, with the way he communicate वगैरह, whatever it is, like it's a God gift talent. And plus, if he increases that, he can touch many lives, many more lives. He can have more transformational classes where people are not just really happy listening to him. People, when they leave the class, they're like, wow, that was amazing. That was interesting. I loved that kind of an impact. And this is what we all have to do. I'm just giving an example of Nam Sankirtan Prabhu, but we all have that talent. Like Mitul Prabhu, I don't know, but when I spoke to Mitul Prabhu to give classes, he said, no, Prabhu, are you sure? है ना? But now he knows that he can give classes. Now what he's doing is he's actually improving his talent, and his classes, every single class is 200 times better than the last class. So this is how he's growing. And this is the value that we hear from Bhishma Dev, where he's saying, you know what, all of us, we need to increase values in us so that we can add more value to the service we're doing for Krishna, you know. And now what I will do is I'm going to pause for 30 seconds. I'm going to actually put a timer for 30 seconds, and I want you to write down or think about, this is the question, what value can I add in myself so that I can become valuable in Lord's mission? Midul Prabhu, can you put this question in the chat, please? Write, what value can I add into myself so that what value I can add in myself I can add in myself so that so that I can become I can become valuable valuable in Lord's mission? in Lord's mission. So I want you to, I'm going to put 30 second
timer in here. I would really want you to think and write down. I'm going to write down for me as well. Okay. So let's do it together. Let's put a timer for 30 seconds. And the time starts now. All right. All right. Thank you. Look, I'm not going to ask you to share it, but if you want to share it, you can just share it whenever you want. So let's move on. So this is the reason why, because hamari this class um and the third thing that we learned from here is existing value. एक तो हम लोग हो सकता है we can get new values, है ना. फर्स्ट वी चेंज आवर कैरेक्टर, वी बिकम, हमारा कैरेक्टर ऐसा बना लें हम लोग जैसा भीष्म देव का है. एग्जैक्टली हम वी कांट कंपेयर आवरसेल्फ टू भीष्म देव, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स उनकी क्वालिटीज, भीष्म देव का कैरेक्टर. दूसरा क्या हुआ, एड वैल्यू हमारी लाइफ में सो दैट वी कैन ऐड वैल्यू टू अदर्स. एंड द थर्ड थिंग इज हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जो हमारे पास ऑलरेडी है, व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज माय कैपेसिटी. एग्जाम्पल क्या होगा इसका, फॉर एग्जाम्पल चैंटिंग. ठीक है, वी ऑल डू 16 राउंड्स, लाइक मोस्ट ऑफ अस, आई थिंक ऑल ऑफ अस, वी डू 16 राउंड्स एवरी डे. नाउ 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग अगर हम कर रहे हैं, हाउ कैन आई इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द चैंटिंग. That should we should do. We should think about what can I do to increase my capacity. जो मेरे पास already value है, उसको how can I increase, है ना. अब when you add value in yourself so that you can be useful to others, sometimes people want to add value in themselves so that they can earn more money, but that's not what I'm talking about. I'm talking about adding value in yourself. Now I'm not saying it is wrong to add value to earn more money. I'm not saying it's wrong. I'm saying that is do good, but do add another thing to it, is how can I influence positively more lives by adding the values. If that means you're earning more money, that's bonus. You know what I mean. Money should not be our focus. Our focus should be just value add. हमारे corporate terms में we call it what do we call it, we call it leading indicators and lagging indicators, है ना. अब लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होता है, आपने लैगिंग इंडिकेटर होता है जस्ट रिजल्ट. फॉर एग्जांपल मैंने ये एक प्रोजेक्ट करा, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया $1 million से. ठीक है, दिस इज अ, सो $1 million एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर. लेकिन लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स आई हैव टेकन टू इंक्रीज दैट $1 million. सो इफ आई फोकस ऑन दैट लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग अपने आप आएगा. लेकिन अगर मैं लैगिंग में जाऊंगा कि मेरे को $1 million चाहिए, $1 million चाहिए, और अगर मैं ज्यादा क्रिएटिव नहीं हूं, सो इज a पॉसिबिलिटी दैट आई विल डू समथिंग रॉन्ग, इन द सेंस दैट आई विल डू रॉन्ग मीन्स टू दैट अर्न दैट $1 million. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनीवे, यस बेटा, आपका क्वेश्चन है अविराज. मैंने बोलना है कि वो व्हाट आई वांट टू डू टू बी वैल्यूबल, प्लीज बोलो ना बेटा, प्लीज शेयर इट. वो डू हरि नाम इन द सिटी. Wow, that's amazing. Thank you, beta. That is really good. If you can do that, Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu is gonna be very, very happy with you. Very, and Guru Maharaj will be very happy with you. Very, very happy. पता है, this is not an easy thing, doing Harinam and doing that prana जैसे अभी वो ले रहा है. This is exceptional. Beta, thank you very much. That is incredible. Anyway, so people will see. So what happens is, जैसे अभी अविराज ने बोला है अभी ना, so when people add values, when people will increase their value so that they can add value in others in a positive way, then what will happen is people will come and see you automatically and come to you and say, you know what, Prabhu, I want to learn this. Can you teach me? You know, like अपने रुचिता माता जी है ना, जो कीर्तन वो करते हैं, you know, people will go to her and say, रुचिता माता जी, can you help me, can you teach me how to, you know, play harmonium and, you know, do some kirtan and
help me prepare this, help me prepare that kind of stuff. वो क्यों होता है? Because they have talent, and people go to them to learn those talent. तभी तो देखो कोचेस होते हैं, जैसे taekwondo, judo, karate, ये सारे कोचेस होते हैं. Why do people go to them? Because they have one value, and they are mastered it so much that they can give that value to us. Like, they can add value in us, and that's why we go to a specialist. So अगर हमारा character बहुत अच्छा होगा, हमारे value system strong होंगे like Bhishma Dev, and we are always interested in upskilling ourselves to become a better human being. For what? Not for name and fame, but to be more impactful in the future for other people, so I can be more helpful to other people. Then truly and truly we will be able to be happy, है ना? हमारी जो ट्रू हैप्पीनेस किस में होगी? व्हेन वी सर्व, बिकॉज जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास. हमारी जो पोजीशन है, वी आर सर्वेंट. इफ यू आर नॉट सर्विंग, विल नेवर बी हैप्पी. No matter how much money you have, no matter how much wealth you have, no matter how popular you are, you are the, magnet. If it doesn't matter who you are, but if you don't have servitude, if you are not doing this to serve people, at the end of the day, it is shramah evahi kevalam na utpadayat yadi ratim shramah evahi kevalam. Doesn't matter how many endeavors you do, अगर आपके मन में लोगों के लिए सर्विस एटीट्यूड नहीं है, एंड अगर आपके मन में भगवान की सेवा करने का और भगवान को प्रसन्न करने का एटीट्यूड नहीं है, देन एवरीथिंग इज यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम. श्रमः एव ही केवलम, है ना? श्रीमद् भागवतम सेज दैट. सो हमें क्या करना है कि वी नीड टू इनकलकेट दिस. सो व्हाट इज इट? डोंट वेस्ट टाइम इन competing with others. One of the most important thing is, you know don't get into competition. Don't get into competition, and do not, and especially like some people, even devotees, may we think, oh, we're competing, this person is competing with that person, that person is competing with that person. What we are doing, we are losing our mind, we are losing our precious time, we are losing our all, हमारा प्रेशियस, हमारा जो एटीट्यूड है, मोटिवेशन एटीट्यूड है, वो चला जाता है, सब कुछ चला जाता है. इट्स एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम. सो वी शुड नॉट डू दैट. एंड एवरी मोमेंट मैटर. एंड हमारे लिए वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज ए कांस्टेंट ग्रोथ. अगर हम लोग स्पिरिचुअली नहीं ग्रो करेंगे ना, वी वुड वांट टू ग्रो इन ए रॉन्ग सेंस. सो ग्रोथ हम लोगों को करनी है. दिस इज आर, हमारे है ही, हमारा नेचर ही ऐसा है कि वी वांट ग्रोथ. अगर हम लोगों को भक्ति में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, वी विल ट्राई एंड फाइंड सम अदर वे, है ना? और ये हम लोगों ने देखा है. इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है नाउ, अकॉर्डिंग टू दिस, व्हाट ही इज डूइंग, भीष्म देव इज ही इज फिक्सिंग हिज आई. उनको समझ में आ गया कि नाउ द सन्स पोजीशन हैज मूव टू उत्तरायण. दैट मींस दे बीन टॉकिंग फॉर फ्यू डेज. उत्तरायण में जैसे ही सन गया, उन्होंने क्या करा, अपनी आंखें भगवान के चतुर्भुज रूप में लगा दी. एंड इसको कहते हैं, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड ऑफ इट, इन मेडिटेशन टर्म्स इट्स कॉल्ड त्राटक. त्राटक क्या होता है? व्हेन यू लुक एट अ फ्लेम, लाइक कुछ भी देखते हो, वट एवर द ऑब्जेक्ट ऑफ इट, यू लुक एट देम टकटकी लगा के, है ना? बिल्कुल आंखें पलकनी चपकनी चाहिए, आंखों में आंसू आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू कीप लुकिंग एट इट, है ना? That's called Tratak in Tratak meditation. So he started doing that because what he wants to do, he knew Antakale Chamameva Smaranam Muktva Kalevaram. He's looking taktaki baandh ke, bina aankhe jhapkaye. He's looking at Krishna and he's gonna pass away. What a glorious death. It is such a glorious death that we are reading about it thousands of years later and we are still getting benefits out of it. And this is the glory of Bhishma Dev. Bhishma Dev is such an amazing devotee, and we should know who he is because sometimes हमारे टीवी में और इसमें कैसे दिखाते हैं कि भीष्म देव ऐसे रो ही रहे हैं, पूरे दिन रोते रहते हैं ना, ही इज ऑलवेज क्राइंग, है ना? I can't remember, Mukesh Khanna ने उनका जो रोल करा था, he was always like this crying. He was such an incredible personality, and उनकी जो qualities हैं, it is unmatchable to any human being present in that at that era in the whole universe. This is how powerful he was, you know. So we should understand to learn from the best of the best of the best of the best. He was physically powerful, he was scripturally powerful, he was
भक्ति के उसमें he was so powerful. He was one of the pure devotees. So Bhishmadev Maharaj ki jai. So we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai. Anybody has any questions, any comments, anybody wants to share anything, please go ahead. I'm going to read if I missed any messages. Richa Mataji said, work on myself and change my energy. This will flow and impact energy of the people around me. Beautiful. Mataji, one more thing, one more suggestion is, this is exceptional. Just make sure that you have what are the steps that you will take to change your energy. So be very granular. The more granular you get, the more incredible the results will be. है ना? Okay. Anybody has any questions, any comments, anything? Okay. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you very much for joining. Adya ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna Adya. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.